हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @BBS कुशवाहा। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यूज और उसके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, read the first question. The question is a current of 0.5 ampere flows through a conductor for 10 minutes. The charge passed is. तो we have given, हमें करंट दिया हुआ है that is I is equal to 0.5 एम्पियर और वो कंडक्टर के थ्रू 10 मिनट्स तक टाइम हमको दिया है 10 मिनट्स। तो हमें चार्ज की वैल्यू पता करनी है। तो हमें पता है Q is equal to IT करंट इंटू टाइम। सो जैसे यहां से देख पा रहे हैं, तो यहां से देख पा रहे हैं Q is equal to IT। तो वैल्यू ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ current that is 0.5 and time, we convert time minute into seconds. To when we convert minute, 10 into 60, so we got 600 to 600 seconds. So we put here like 600. So when multiply these two quantities, we got just 300 coulomb. 300 coulomb is the correct answer. Now next question is, the potential difference between 2 points is 12. 2 points is 12 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट एंड मूव्स बिटवीन देम वर्क डन। इफ 2 कूलम चार्ज एंड चार्ज की वैल्यू दी है 2 कूलम, सो उसके बीच वर्क डन निकालना है। सो potential difference across two ends is equal to Q, W by Q, and when we want to find out the work, we convert this VQ. So work done is equal to voltage difference with work with charge, that is 12 multiplied by 2. We got 24 joule. So work done would be 24 joule. Now next question we'll discuss. It is question number 4. Question is says that which graph represents Ohm's law? ऐसा कौन सा ग्राफ है जो Ohm's law को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए कर्व VI ग्राफ, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन डी इज वर्टिकल लाइन। सो हम जब when we draw the VI, as we know Ohm's law is V is directly proportional to I, means voltage difference is directly proportional to current flow. इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं V और I में, तो we got a straight line like this. So and this is the origin. So it's passed through origin. So the correct answer is straight line passing through the origin. Because ohmic conductor के लिए V is directly proportional to I. Now discuss question number 4. Why is copper used for electrical wiring? तो कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम क्यों करते हैं? क्वेश्चन वी हैव। सो ऑप्शन ए है हमारा हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इज लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऑप्शन सी लो रेजिस्टिविटी है, या ऑप्शन डी है हाई रेजिस्टिविटी। अब कॉपर वायर में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, इसलिए इसकी लो रेजिस्टिविटी होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में ये करंट को रोकता है। मींस कॉपर अलाउज करंट टू फ्लो इजिली, दैट्स व्हाई इट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 5. The resistance of a wire is doubled if. अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस R is directly proportional to L. So when
जब हम इसको डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज लेंथ इज डबल, ऑप्शन एरिया इज डबल, मटेरियल चेंज कॉपर, टेम्परेचर इज डिक्रीज। सो करेक्ट आंसर इज व्हेन लेंथ इज डबल। तो लेंथ को जब डबल कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो उसकी लेंथ भी बिकम्स डबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, two resistors of 4 ohm, two resistors of 4 ohm and 6 ohm are connected in series. So like this, two resistors, that is 4 ohm and this is 6 ohm, is connected in series. So as we know, series में resultant होता है R1 plus R2. So we have given R1 4 ohm and 6 ohm. So we simply add this 4 plus 6, that is 10 ohm. So correct answer is 10 ohm. Option B is correct. Okay, now question number 7. Three resistors of 2 ohm are connected in series. So we have given 3 conductors and 3 resistors, 1 2 3 XY। तो 2 ओम के कंडक्टर्स, दैट इज 2 ओम, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें पता है जो सीरीज में इक्वल होता है तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। तो यहां से सिंपली वी एड दिस, वी गॉट RS is equal to 2 plus 2 plus 2, that is 6 ohm. तो correct option is C. Option C is correct answer. So now come to question number 8. The question says where resistors are connected in parallel, the potential difference across each resistor. तो जब भी हम रेजिस्टर्स को इस तरीके से पैरेलल करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो सभी में सेम हो, वोल्टेज सभी में क्या होगा, सेम होगा। सो वोल्टेज रिमेन द सेम अक्रॉस पैरेलल ब्रांचेस। करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेम। Now question number 9. The filament of a bulb, electric bulb, is made up of, option A is copper, option D is aluminium, option C is tungsten, option D is iron. So जो जिस मटेरियल का बना होता है फिलामेंट वो होता है टंगस्टन का। द ऑप्शन इज सी। तो यहाँ पर जो वायर होता है दैट इज ऑफ बल्ब, यहाँ पे दिस इज टंगस्टन। ये टंगस्टन, और बिकॉज टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मीन्स बहुत देर के साथ में ग्लो कर सकता है विदाउट फ्यूज। Now question number 10. According to Joule's law of heating, heat produced is proportional to. तो यहां से हीट, जूल्स हीट ऑफ हीटिंग के मुताबिक जो लॉ कहता है वो कहता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर आई करंट है, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम में। तो एक्सप्लेन में आई स्क्वायर आर टी, तो ये आई, दैट ऑप्शन बी आई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। Now question number 11 says which appliance convert electrical energy into heat energy? कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन बी इज फैन, जो कि नहीं करता है। इलेक्ट्रिक आयरन, ये हीट करता है। मोटर, जनरेटर मोटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक आयरन, बिकॉज इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसका इस्तेमाल हम लोग कपड़ों में आयरन करने के लिए करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है,
जिसका 60 वॉट इसमें पावर दिया हुआ है, उसका 60 वोट वॉट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है उसका 220 वोल्ट। तो करंट ड्रॉ निकालना है अब। तो यहां से P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो I निकालने के लिए I इज इक्वल टू P बाई V। P बाई V, that is when we putting the value of power is 60 watt and voltage is 220 volt, approximately we got 0.27 ampere is the correct answer. The option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Now next question. The question is 1 unit of electricity is equal to. Question number 13, sorry. Question number 13 says commercial unit of electrical energy is, option A is joule, option B is watt, option C is kilowatt, option D is volt. So correct answer is kilowatt hour. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मीटर में यूनिट दिखाता है कमर्शियल यूनिट, दरअसल उसका जो एक्चुअल नेम है उसको हम किलोवाट आवर या सिंपली इसको KW से KWH से रिप्रेजेंट करा जाता है। So next question 14 है 1 unit of electricity is equal to, 1 unit of electricity किसके बराबर होती है? Option A is 1 kilowatt, option B is kilowatt hour, option D is 1 kilowatt hour, option 1000 joule, option D is 3600 joule. तो 1 kilowatt hour is the correct answer. तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kilowatt hour. Now question number 15 says a fuse wire is connected. जो फ्यूज वायर होता है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है? पैरेलल सीरीज में अप्लायंस के अक्रॉस या न्यूट्रल वायर के साथ? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन सीरीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन सीरीज में, बिकॉज फ्यूज जो मेल्ट होता है और ब्रेक कर देता है सर्किट को, जिससे कि एक्सेसिव हीट एक्सेसिव करंट फ्लो नहीं होता और हमारे अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। So this is all about the important MCQs. It is important MCQs from the exam point of view. So revise it and please like, share, subscribe my channel as it brings Kaswa and keep watching my videos. Thank you so much. Have a nice day.